कविता कथा कारवां अदब का ये है गुलसितां। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਨੇ ਗੋਗੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣਤਰ ਬੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ, ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ, ਘੰਟਾ ਲਵਾ ਲਓ, 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ, ਬੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਕਾਇਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੰਪੇਅਰ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪਰਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੇਨ ਸਰੋਤਾ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ, ਜਨਰਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਵ ਟੂ ਹੀਅਰ ਹਿਮ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਖੜਵੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਊਥ ਸਪੋਕਨ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ ਪੂਰੇ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਸਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਫਟ ਸਪੋਕਨ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੋਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਫਟ ਸਪੋਕਨ ਨੇ, ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਕੇਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ 1-2 ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਕੇਲ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਲਣਾ, ਸਕੇਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕੇਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੱਟ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫਟ ਸਪੋਕਨ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਲੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਜੋਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਰੈਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ हैं ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਇਰ ਤੇ ਟਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਹਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਿਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। तो कोशिश करता हूँ कुछ मैं सुनाने की। बिल्कुल कई बार होता है कि कुछ शेर जो है ना किसी और शायर ने कहे होते हैं, और मुझे ऐसा लगा उन शेरों को सुनने के बाद कि ये मैंने क्यों नहीं लिखे। उनमें से कुछ एक शेर मैं आपको सुना दूंगा, फिर आपको एक कविता सुनाऊंगा, ठीक है। करूँगा क्या गोगिया जी, करूँगा क्या मोहब्बत में अगर नाकाम हो गया, करूँगा क्या पलक जी, करूँगा क्या मोहब्बत में अगर नाकाम हो गया, मुझे तो और कोई काम आता ही नहीं है। क्या ये तो और कोई काम आता है। एक और शेर आया था नजर में, अच्छा खासा बैठा बैठा गुम हो जाता हूँ। लगता है कि मैंने क्यों नहीं लिखे ये, मुझे बड़ी पता है क्या शेर है। देखिए, अच्छा खासा बैठा बैठा गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। अच्छा खासा बैठा बैठा गुम हो जाता हूँ। और एक और शेर सुने, कर ही नहीं रहा था वो मेरी बात का यकीन, कर ही नहीं रहा था अजमेर जी, कर ही नहीं रहा था वो मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे, यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। और एक शेर है, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, मैं ज़रा होश में आ लूँ तो चला जाऊँगा दहलीज पे। अब मैं आपको मैं भी व्यंग कविता लिखने की कोशिश की है मैंने, और आपने अक्सर देखा होगा हस्बैंड वाइफ जो हैं वो ट्रिप लगाते हैं हिल स्टेशनों की,
तो वहाँ क्या कहानी होती है उसको लेकर मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की है। हालांकि मैं उतनी अच्छी तो नहीं लिख सकता जितनी रविंद्र जी लिखते हैं। अच्छा, कई बार अपने शेर भी अच्छे लगते हैं। मैं एक और शेर आपको देता हूं। अच्छा। मुसलसल बेरुखी पर भी नहीं कोई गिला मुझको, मुसलसल बेरुखी पर भी नहीं कोई गिला मुझको, मोहब्बत करनी है मैंने करवानी नहीं है। क्या? मोहब्बत करनी है मैंने करवानी नहीं। करवानी नहीं है। चलिए सुनिए, हिल स्टेशन की दास्तान, नए नए पति पत्नी की। आज कविता का शीर्षक है आओ फिर चल दे कहीं सब कुछ पीछे छोड़ो। हस्बैंड वाइफ की कहानी है। देखिए वो क्या करते हैं हिल स्टेशन पर। आओ फिर चल दे कहीं सब कुछ पीछे छोड़, ना पीछे का जिक्र हो ना कोई फरियाद, ना पीछे का फिक्र हो ना कुछ आए याद, ना कुछ आएगा। ना पीछे का जिक्र हो ना कोई फरियाद, ना पीछे का फिक्र हो ना कुछ आए याद, हम दोनों ही हो वहाँ साथ हमारा प्यार, घास बिछी हो मखमली सिर पे घना चिनार, धरती के ऊपर जहाँ झुका हुआ आकाश, जहाँ फिजा हो कर रही खुशबू भरी तलाश, वहीं कहीं बैठे चलो सिर से सिर को जोड़, आओ फिर चल दें कहीं सब कुछ पीछे छोड़। अब व्यंग आगे शुरू होगा। अभी तो ये सीरियस थी बात। हाँ तो शॉपिंग करने के लिए आए हम बाजार, शॉपिंग करने के लिए आए हम बाजार, सूट साड़ियों पर्स की छाई जहां बहार, आर्टिफिशियल ज्वेलरी फैला हो अंबार, कंगन झुमके ब्रेसलेट और गले का हार, करे शॉपकीपर जहां बार बार इसरार, और करो तुम बैठकर दामों पर तकरार, तकू बार्गेनिंग वहां मैं ऐसी बेजोड़, आओ फिर चल दे कहीं सब कुछ पीछे छोड़। ढाबे में जाकर किसी खाए मटर पुलाव, ढाबे में जाकर किसी खाए मटर पुलाव, मंगवाए लोकल डिशें पूरा कर ले चाव, हाथों में मेन्यू पकड़ वेटर से ले राय, क्या मंगाना है क्या लेना है, हाथों में मेन्यू पकड़ वेटर से ले राय, कहवे की हो चुस्कियां या कॉफी या चाय, बिल्कुल ही डालें बदल स्वीट डिशों का रंग, लें गुलाब जामुन गरम ठंडी कुल्फी संग, बिल्कुल ही डालें बदल स्वीट डिशों का रंग, लें गुलाब जामुन गरम ठंडी कुल्फी संग, पिछले सभी रिकॉर्ड हम अब की डालें तोड़, आओ फिर चल दें कहीं सब कुछ पीछे छोड़। हंसी वादियों की करें फिर हम दोनों सैर, पत्थर पर तुम बैठना डाल नदी में पैर, पानी से फिर खेलना दोनों हाथ उछाल, करके आगे की तरफ छितरा देना बाल, इधर किनारे पर खड़ा मैं खींचूं तस्वीर, खुद को मैं राजा समझ तुम्हें समझ लूं हीर, प्रेम कथाओं में इन्हीं अपनी भी दें जोड़, आओ फिर चल दें कहीं सब कुछ पीछे छोड़। फोटोग्राफी मैं करूं लोकेशन को खोज, तरह तरह के हर जगह खूब बनाना पोज, कभी बनाते वीडियो आ जाए आवाज, बोले तुम क्यों बीच में हो जाना नाराज, कभी बनाते वीडियो आ जाए आवाज, बोले क्यों तुम बीच में हो जाना नाराज, झिड़की दे कहना मुझे कर दो इसे डिलीट, फिर से करती हूँ चलो एक्शन वही रिपीट, सीधे आना यहाँ तक यहाँ काटना मोड़, इधर होया लगदा तां देखो किसी ना किसी पे बीती हुई है। सीधे आना यहाँ तक यहाँ काटना मोड़, आओ फिर चल दे कहीं सब कुछ पीछे छोड़। घोड़े पर देना चढ़ा कुछ ना होता बोल, सहमा सा बैठा रहूं मैं तो डामाडोल,
किसी तरह चलते चले चोटी पर हो आए, बीच बीच में उतर कर कुछ फोटो खिंचवाएं। चश्मा तुम लेना लगा फोटो खींचते वक्त, चश्मा तुम लेना लगा फोटो खींचते वक्त, चश्मे में आए नजर खड़ा सामने भक्त, यादों में हम ले बसा पगडंडी के मोड़, आओ फिर चल दें कहीं सब कुछ पीछे छोड़। और आखिरी बंद है इसका, बार बार मिलता नहीं ऐसा समा हसीन, बार बार मिलता नहीं ऐसा समा हसीन, आओ फिर से जिंदगी कर लें कुछ रंगीन, पूर्व जन्म के पुण्य से मिला तुम्हारा साथ, इसी तरह हर हाल में रहे हाथ में हाथ, पटना हो या श्रीनगर कर लें आओ प्लान, करें प्लेन की टिकट बुक आओ भरे उड़ान, चलो खर्च आए सभी रखा हुआ जो जोड़, आओ फिर चल दें कहीं सब कुछ पीछे छोड़। आओ फिर चल दें सही जगह। थोड़ा बहुत पटना बहुत शुक्रिया। पटना ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ये पटना पटना ते ना रिदम मिल गया ना, मात्रा में मिल ਅੱਛਾ गया। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਟਨੇ ਦਾ हाँ जी तुसी ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਟਨੇ ਦਾ ਹੀ ਆ अच्छा अच्छा ਮੈਂ ਤਾਂ